And what is the next? If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Okay, so the question is in two parts. That is, what will be the impact of non-biodegradable waste on our environment? So non-biodegradable waste may be in the form of plastics or polythenes, or in the form of tires, or in the form of metal bags, or the containers, etc. These are the things when we use them, and after our use we simply discard them. We simply throw them out. In India, so it is, we have got the full liberty to use our environment like anything. Okay. So what I said, when we throw these plastics, these glass bottles with these tires and these other type of things, so they remain there in the environment for a long time. They will not be decomposed, because the decomposition process for these things are not available. The enzyme for decomposition of plastics and glass, or the metal containers, or the tires, or the detergents, or the synthetic fibers. No, this is not synthetic. Synthetic fibers, the pens which I got, and this sheet which I got on my fitted on my door, and the plastic cooler and all there are variety of things. The thing which I decorated on my head for it, that is the spectacles, plastic frame, and then प्लास्टिक का ही लेंस है. हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं, दे विल नॉट डिकम्पोज. सो व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट सिंपली थ्रो? आई कैन इवन सी वन थर्मोकोल lying in front of me. So all these things, once you throw them, discard them, they will not be decomposed. They will be collected there, and heaps of these things will be collected. And then what will happen? This will dirty our environment. एक तो वो हो गया, that is, they will not be decomposed, they will be dirtying our environment. Secondly, the resources which were bound in this, that the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, magnesium, iodine, जो भी कुछ है उसके अंदर यूज हुआ होगा, है ना, that also have completely gone out of the reuse. दोबारा तो आप यूज कर ही नहीं सकते. तो once use वो तो ब्लॉक हो गया हमेशा के लिए. That means every time if you need more new phosphorus, you will have to dig the soil. New sulfur, you have to dig the soil. New carbon, you have to use the fresh carbon from the environment, or oxygen. So this is how the burden on the resources will increase. Okay. And thirdly, the place where they are collected, dump yard, that much of space will also be occupied, and that will be forever there. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट ए वेरी क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल थिंग. वो एनवायरनमेंट को जो है, ठीक है, मतलब वो मतलब वी हैव इनफ ऑफ रिसोर्सेज. अभी तो कोई कमी नहीं है, अभी तो कोई कमी नहीं है. जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की है वो अबाउट 7 बिलियन, उनके लिए तो है हमारे पास, ठीक है. बट दिस विल नॉट गो ऑन फॉर एवर. ना सपोज कोई फार्मर खेती करता है, और उसके खेत में जाकर के पॉलीबैग जो आसपास में आपने डाल रखी है, यू जस्ट freely threw it, and with the wind breeze it has gone into the field and in field, और फिर वो उसमें वो जमीन में चले गए. अब वो सीड उगाता, उसमें ट्रैप होकर रह जाएगा, ठीक है. तो ये कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स है. एंड देन दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड एम्फसाइज द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है. तो वो क्या है, वंस यूज यू सिंपली डिस्कार्ड, दे विल बी रीयूज. तो जितनी भी कॉपीज हैं, पेपर, ठीक है, कॉटन क्लॉथ है, then the wood is there, then the leather is there, and some other type of things. soap है, soap कौन से, बट्टी वाले, वो जो छोकरा साबुन का ऐड आ रहा है ना खूब, हाँ वो वाले. एंड ये जो पीली बट्टी वाले साबुन है, नॉट ऑफ एरियल एंड रिन एंड व्हाट यू कॉल, आई शुड नॉट स्पेसिफाई ब्रांड, बट व्हाट टू डू, हम तो देखते उसी को ही है ना. तो वो जो है, ये डिटर्जेंट है, सिंथेटिक है. सिंथेटिक तो डिकम्पोज नहीं होता है. वंस दे गो इनटू द वाटर, इट विल रिमेन देयर. सो इनको हमको कम करना है, मिनिमाइज करना है. अब देखो, दुनिया इतनी आगे आ गई, हम टेक्नोलॉजिकली सो एडवांस हो गए कि वी कैन नॉट सिंपली डिनाई. हम ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं साहब यूज ही नहीं करना है. तो फिर बोलेंगे तो फिर क्या, मतलब हाउ विल वी लिव? अगर आपको कह दें कि भाई आपको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो ऑल योर पेन्स और योर क्या कहते हैं बोर्ड, and all your geometry box, and in a whole number of variety of things which we are using in the microwave and others, they all are made up of plastic. So वो तो फिर उनके बिना कैसे काम चलेगा?
ठीक है, तो दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि जो मतलब हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टोटली अवॉइड द यूज ऑफ दीज थिंग्स, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मिनिमाइज. And then what else we can do? What else we can do if we are use the biodegradable waste, non biodegradable. तो non biodegradable जो है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिसाइक्लेबल और एक है नॉन रिसाइक्लेबल. जो रिसाइक्लेबल है उसको तो हम रिसाइकल कर लें. What? There are certain kind of plastics which can be recycled. Almost all kinds of glass can be recycled. All the metal cans can be recycled. Metal items can be recycled. जैसे हम गोल्ड को रिसाइकल कर लेते हैं ना, कोई नहीं फेंकता गोल्ड के, यार ये तो पुराना हो गया चलो इसको फेंक दो. कोई फेंक रहा हो तो बताना है, मेरे भी घूमने की इच्छा हो गई. Even in lockdown I will come definitely. अगर कोई गोल्ड फेंकने में इंटरेस्ट हो तो बताना. तो nobody throws. ठीक है, तो ये क्या है, जो चीजें रिसाइकल, अभी भी इंडिया में वी आर स्टिल एनवायरमेंट फ्रेंडली. अनलाइक अमेरिकन, दे सिंपली यूज द कैन एंड दे सिंपली थ्रो इट. वी आर नॉट सो, वी आर स्टिल रिसाइकलिंग. वी हैव गॉट सम कबाड़ी फेलो कम एंड कलेक्ट. ठीक है, हमारे मोहल्ले में संडे टू संडे दे कम एंड दे कलेक्ट. तो वो क्या करेंगे, वो ले करके जाएंगे उनको, एंड दे नो कि कौन सी चीज कलेक्ट करनी है, कौन सा टाइप का प्लास्टिक रिसाइक्लेबल, कौन सा टाइप का प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल. रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है वो पेट की बोतल पड़ी है ना, बैटरी वाटर की, इन्वर्टर की, दैट इज नॉन रिसाइक्लेबल. अगेन हियर देयर सम बॉटल्स आर लाइंग ऑफ फिनाइल, दे आर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक. तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. ठीक है, तो वी आर डिक्रीजिंग द बर्डन. उनको दोबारा यूज कर लेंगे किसी और चीज में. मेटल्स कैन बी रीयूज्ड. This metal cans are there. All the soft drinks which are available in the cans, they all are aluminum. After use, you just throw it and that can be recycled. A beautiful strategy. I said शायद मैंने पहले बताया, I seen in Australia. वहाँ पे क्या है कि there are different cans, different bins rather. उन bins के अंदर they keep on collecting the waste in the form of their categories, like all the metal, उसको मेटल वाले में डालेंगे, ऑल द पेपर, जैसे वेजिटेबल एंड द बायोडिग्रेडेबल, उनको एक ग्रीन कलर का बिन होता है उसमें डाल रहे हैं, है ना. एंड ऑल ग्लास आइटम दे आर पुटिंग इनटू अनदर कैन, प्लास्टिक्स दे आर पुटिंग इन अनदर कैन, बिकॉज देयर इज नो सॉर्टिंग. वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा जो इनको अलग अलग करेगा, जैसे हमारे यहाँ कबाड़े वाले कर लेता ना, जैसे अब ये प्लास्टिक तो चल जाएगा पर वो वाला नहीं चलेगा. दे डोंट हैव ऑल दिस. तो वो क्या है, वो सीधा बिन आएगा, उठेगा, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में सीधे फर्नेस में जाएगा, मेल्ट होगा एंड इमीडिएटली दैट कैन बी यूज फॉर रिसाइकलिंग. सो दैट इज वन अगेन अ नोबल स्ट्रेटेजी फॉर दोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो बैक्टीरिया तो नहीं कर पा रहे उसका डिग्रेडेशन, फंगाई तो नहीं कर पा रहे, बट वी कैन डू. डिग्रेड नहीं करेंगे बट रीयूज कर लेंगे. सो वी आर डिक्रीजिंग द बर्डन ऑन द एनवायरमेंट इन द टू वेज. दैट इज, एक तो हमने उनका जो ढेर लग रहा था कचरे का उसको हटाया, एंड सेकेंडली वी आर रिड्यूस द बर्डन ऑफ फ्रेश रिसोर्सेज, यूज ऑफ फ्रेश रिसोर्सेज. अदरवाइज वी वुड हैव टू यूज फ्रेश रिसोर्सेज. ठीक है, ये कौन है, दाशवीन कौन है ये, पुट योर कैमरा ऑन बेटा. दशवीन कौन है ये, ऐसा तो नाम ही नहीं सुना है मैंने कभी. बाहर करो, चलिए फिनिक्स लगा लेते हैं. ओके, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट कौन से है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है और नॉन रिसाइक्लेबल भी है, उनका कुछ कर ही नहीं सकते. जैसे मैंने कहा वो थर्मोकोल पड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा वो पेट की बोतल पड़ी हुई है. ठीक है, जैसे वो आपके सूटकेस आते हैं जितने भी पॉलीकार्बोनेट के, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. सो अब उनको क्या कर सकते हैं, द टायर्स विच वी आर यूजिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ टायर्स. ठीक है, बाकी तो फिर भी चलो छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह हैं, तो क्या करेंगे इनको आप काम में ले सकते हैं फॉर लैंडफिल, उनको आप काम में ले सकते हैं फॉर बिल्डिंग. You can use them in cementing, जो रूफ वगैरह की बनती है, and roads. ठीक है,
Tires जो होते हैं, they are special machines developed by some of the countries which cuts the tire into small cubic pieces which can be mixed along with the other material and they can be used to lay the road. अब वो जो road होगा that will have better durability. ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द वे. बिल्डिंग्स में आपने यूज कर लिया तो वो प्लास्टिक है, सीमेंट से कवर हो गया, ऊपर तो आपने प्लास्टर कर दिया ना, वो प्लास्टिक तो वहीं रहेगा बिकॉज दैट as long as you are going to stay in a building not more than 100 years. दो जनरेशन कहाँ, आजकल तो 30 साल में लोगों का मन भर जाता है, बोले यार पापा ये फालतू कमरा बना रखा है, इसको तोड़ देते हैं, यहाँ अपन गार्डन बनाएंगे, रूफ गार्डन बनाएंगे, यहाँ बालकनी बनाएंगे. तो पीपल आर फेड अप विद इन नो टाइम. तो वो 30 साल 100 साल तो आप दूर की बात मान रहे हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो 100 साल भी, तो प्लास्टिक 100 साल में खराब नहीं हो रहा है. So if you are using your plastic in building material or you are using it for filling the land in which you will construct some type of thing, or you are using it for the road building purpose, or you are using to some design some type of sculptures out of it, तो वो सब हम कर सकते हैं. ठीक है, because they cannot be recycled और biodegradable तो है ही नहीं. अब हम कोई केमिकल से थोड़ी उसको डाइजेस्ट करेंगे. दैट मीन्स अगेन वी आर पुटिंग अ रिसोर्सेज बर्डन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, यू नो द ई वेस्ट, आपने ये वर्ड सुना ई वेस्ट? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई वेस्ट? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को एंड टेल मी व्हाट इज मेंट बाय ई वेस्ट. So all types of electronic devices we use. Yeah, very good, very good. Who was that? You can tell your name also. Who told the answer? चलो उसको अपना नाम नहीं बताना, कोई बात नहीं. E-waste are those waste which we are generating by using various type of electronic devices. You know, mobiles are there, laptops are there. I got 6 more laptops lying in my house. I got number of speakers. ठीक है, फिर वो पुरानी टीवी, हाँ वो भी पड़ा हुआ है, प्रिंटर्स है ना, एंड म्यूजिक सिस्टम्स और स्मॉल डिवाइसेस. पहले कितने टाइप के आते थे, पहले इतने बड़े बड़े आ रहे थे, आईपैड होता है, क्या कहते हैं, नाम भी याद नहीं है, हाँ वो सारे आ रहे थे छोटे छोटे होते हुए. आजकल तो कैसे हो गए, बिल्कुल पेन ड्राइव टाइप के हो गए, आजकल तो वो ईयरफोन के अंदर ही लगने लगे हैं. तो दे आर सो, एंड उनकी भी कहाँ जरूरत पड़ी है ना, सब एवरीथिंग ऑनलाइन अवेलेबल है. तो आप तो सिर्फ बोलो मुंह से कि साहब ये गाना बजा दो और आपका क्या कहते हैं अमेजन डिवाइस बजा देता है उसको. ठीक है, एंड देयर आर, तो द टाइम इज चेंज. तो ये जो चीजें हमने यूज करी हैं इनको हम कहेंगे ई वेस्ट. नाउ ई वेस्ट इज व्हाट इज सो डेंजरस अबाउट ई वेस्ट? What is so dangerous about e-waste? That e-waste has got a battery in it. आपके सबके मोबाइल में होगी बैटरी, मैं दिखाता हूँ. मेरे इसमें तो रिमूवेबल बैटरी है, पुराने ज़माने का फ़ोन है, मैंने एक रख रखा है, इसी का नंबर दे रखा है मैंने ना. तो आप जब फ़ोन करते हैं तो दिस फोन, हाँ, सो दिस इज़ द बैटरी, लिथियम आयन बैटरी. अब क्या कर रहे हैं, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हम जाते हैं दुकान पे, बैटरी चेंज कर देता है, सिंपली थ्रोइंग इट. इट इज़ नॉट टू बी थ्रो. इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखना है, यहाँ देखना, हाँ यहाँ ये बिन बना के इसको क्रॉस कर रखा है. इट इज नॉट टू बी सिंपली डिस्कार्डेड लाइक दिस बिकॉज इट हैज गॉट सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल टू द नेचर. इसमें कैडमियम है, इसमें लिथियम है, इसमें दूसरी चीजें हैं जो कि एनवायरमेंट में, पानी में, सोर्सेज में घुल जाएगा. देन इट विल एंटर इनटू आवर वाटर सिस्टम, इन आवर ड्रिंकिंग और फूड सिस्टम, एंड देन इट मे कॉज हार्म टू अस. तो दीज आर नॉट द थिंग्स. ठीक है, देन वो जो सर्किट्स बने होते हैं रेडियो टीवी और लैपटॉप और उनके, उसमें दे गॉट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेड. लेड इज हार्मफुल, लेड कैन कॉज कैंसर. ठीक है, सो वी शुड नॉट हैव दैट. वो लेड एसिड बैटरी पड़ी इन्वर्टर की बड़ी सी. The people who are working in these lead industries, they in due course of time they all get certain type of sickness, irrecoverable sickness. उनको पता है ये, फिर भी वो काम कर रहे. क्या करें, इंडिया में बेरोजगारी इतनी है तो वो तो करना ही पड़ेगा. कौन सी मशीन डेवलप कर लेंगे इन सब के लिए. ठीक है, दैट क्रैकर इंडस्ट्रीज, गॉड नोज व्हाट ऑल टाइप सॉल्ट्स आर यूज्ड व्हिच आर सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, बट सो मच ऑफ प्रेशर कि क्रैकर्स तो बजाने ही है त्योहार पे. ठीक है,
चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, शादियाँ हो, तो हम क्रैकर्स बनाने वाला, चलो अदर कंट्रीज दे मे बी यूजिंग सम मशीन, हमारे यहाँ तो हाथ से रोल कर रहे हैं एंड दे डोंट इवन हैव ग्लव्स, ऐसा फंडा ही नहीं, चाइल्ड लेबर एंड ऑल, ठीक है। और तो ये सारी जो चीज़ें ना दैट, तो ये ई वेस्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें यूज हो रहे हैं, जो इट कैन बी मर्करी, इट कैन बी लेड, इट कैन बी लिथियम, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी अदर आइटम्स विच आर देयर। अब ये जो है दे विल एंटर इनटू आवर फूड चेन, और फिर उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, मैंने पिछले इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, बायोमैग्निफिकेशन। आई सेड दो द अमाउंट इज वेरी लेस, but when continuously used over and over and over and over again, and it goes from one individual to the next trophic level to the next trophic level, and we human being are sitting on the last trophic level, ठीक है, हम वहाँ बैठे हुए हैं कहाँ पे, जो हम मछली खाने वाले, कि हमने मछली खा ली, तो हम थोड़ी सोच रहे हैं कि ये मछली जो है, इस मछली ने क्या क्या खाया, और इसके अंदर लेड भी हो सकता है, इसमें आर्सेनिक भी हो सकता है, इसमें क्या कहते हैं लिथियम भी हो सकता है, एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ठीक है, तो ये ई वेस्ट है। ई वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। दुनिया भर में कई सारी स्पेशल कंपनीज हैं जो इस काम को कर रही हैं, ठीक है। सो डिस्पोजिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो हमको देखना चाहिए कि इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल व्हाट इज रिसाइक्लेबल, दैट शुड बी एम्फसाइज्ड टू बी यूज्ड। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा, देन हमको इनको, जिसका लिए हमारे पास तरीका अवेलेबल है, और वी हैव टू मेक मेथड, ठीक है। यस बेटा, कुछ ज़्यादा ही हो गया, लंबा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Why is the damage to the ozone layer a cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? Okay, depletion of ozone layer. Depletion of ozone layer is one of the biggest cause of concern, because हमने पढ़ा कि डिप्लीशन जो ओजोन लेयर है, इतने लेट आने का क्या मतलब है क्लास? तो जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रहा है कि वो इट इज प्रिवेंटिंग और इट इज फिल्टरिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू एंटर ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन, सो जब वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंटर हो रहे हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो द अपर ओजोन लेयर जो है दैट इज देयर इज द रिवर्सिबल रिएक्शन गोइंग ऑन, जो क्या कर रहा है, वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मिला के 2 ओजोन, एंड देन 2 ओजोन्स आर ब्रेकिंग इनटू 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल with the use of energy of ultraviolet. Hello, put your this thing mic off, camera on. ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ओजोन लेयर है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ओजोन इज 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 O2 है ये, ठीक है, is converted into 2O3, that is ozone, and the ozone is breaking into this, and for that the energy is used in the form of ultraviolet radiation. And what is the source of ultraviolet radiation? It is sunlight, ठीक है। तो sunlight has got sufficient, a good quantity of ultraviolet radiation. When they enter, they strike to the ozone layer, तो वहाँ पे ये सारी एनर्जी में से काफ़ी सारा जो है वो यूज हो जाता है to convert oxygen into ozone and ozone back to oxygen. It is a reversible reaction. तो इससे क्या होगा, only a certain proportion of ultraviolet will reach on earth. It is not so that the ultraviolets are always totally harmful. A certain amount of ultraviolet should reach on earth, क्योंकि it is this ultraviolet which is making vitamin D when it is falling on our skin. बट अति तो हर चीज की खराब होती है। कृष भाटिया, सिद्रा हसन, सार्थक अग्रवाल, अभय परिहार, put your camera on children. What is there to hide? सिद्रा, you are from army बेटा, तुमको तो क्या कहते हैं रूल्स फॉलो करना सबसे पहले आना चाहिए। एनीवे क्या कर सकते हैं। मानसी, put your camera on. भार्गवी, वैदिक नंदवाना, it doesn't look nice that I send you off because of you are not following the rules regulation. मैं तो देखो घर में हूँ ना, फिर भी I am in uniform. I am recording from home.
putting so much of tamjam here, and yet I am in uniform. Huh? चलिए आपकी क्लास का रोज का 10-15 मिनट का टाइम तो इसी में चल जाता है, जस्ट टू सेंड द चिल्ड्रन ऑफ एंड आई टेक द चिल्ड्रन इन. ना 2 पीपल मैंने निकाले, वो आ गया वहाँ वेटिंग, फिर निकालो, फिर उनको ले. Sidra, should I send you out? वैसे भी ओके. अबे परियार, ये सब रिकॉर्डिंग में आता है क्या? आप वीडियो देखेंगे, इनको सुनाई भी देगा. अच्छा, कौन कौन बच्चा था? बिकॉज माई कैमरा इज ऑन, हियर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. सो आई सेड अर्थ यहाँ पर है, उसके ऊपर ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर पे क्या हो रहा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज एंट्रिंग फ्रॉम द सन, a major portion of it is being absorbed here. However, a small portion is still reaching, that is required, also required in two sense. But सबसे पहला तो क्या है? It is making vitamin D. हमारे को चाहिए होता है विटामिन डी फॉर द हेल्दी बोन्स. आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है लोगों को. हम जानते हैं कि मतलब नाउ डेज तो फॉर वो जो इंडिया में जो है लड़कियां होती हैं वो पूरा चेहरा वगैरह ऐसे ऐसे ढक लेती हैं, एंड और यहाँ से यहाँ तक ग्लव्स एंड पूरा. तो एंड वैसे भी हम घर से बाहर निकलते ही नहीं, दे विल नेवर कम आउट. खेलना वेलना तो हो ही गया, आजकल सब मोबाइल पे है ना. तो मोबाइल पे गेम खेलना या कंप्यूटर पे गेम, बाहर निकलना तो लोगों ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया. जाएं भी तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा डोंट गो आउट, देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट दिस एंड दैट एंड सो मनी. सो पीपल आर नॉट, पार्क्स खाली पड़े हुए हैं, गार्डन कोई जाता ही नहीं है. दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज थिंग. सम ईयर बैक व्हेन आई वाज अब्रॉड, मैं किसी कंट्री में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे पार्क खाली पड़े हैं. मैंने कहा यार इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी इन द पार्क, बट देयर इज नो वन. नॉट टुडे द सेम थिंग इन इंडिया. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? वी आर नॉट गेटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो द विटामिन डी इज नॉट फॉर्म, सो बोन्स आर बिकमिंग फ्रेजाइल. जरा सा कुछ हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, ये हो गया, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है आपकी विटामिन की प्रॉब्लम. औरतों को तो सबको ही है करीब करीब. ठीक है, सो नो सूनर दे रीच टू द एज ऑफ 25-26 दे स्टार्ट कैल्शियम टैबलेट्स. दैट गोज ऑन लाइफ लॉन्ग. तो ये जो चीज़ें हैं दैट इज, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो काम कर रहा था. ठीक है, हम तो बाल्यकाल में खूब खेले धूप में, आपको देखने को मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का काम है ना. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक वो नेगेटिव इफेक्ट है कि वो जो है स्किन को थोड़ा डार्क कर देता है, बिकॉज मिलेनिन बनाए, मिलेनिन ही तो प्रिवेंट करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्किन के अंदर आने से. दूसरा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फायदा है वो क्या है कि इट हेल्प्स इन द म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इज नेसेसरी बिकॉज the time is changing, environment is changing, accordingly the human and other species should also change. Evolution होना जरूरी है, and for evolution mutation is must, and mutation का one of the biggest and common source is ultraviolet radiation. तो ये पूरी तरह एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है और पूरी तरह अंदर भी नहीं आ रही है. अगर ये ज़्यादा आ जाएंगे तो हमने पढ़ा उसका इफेक्ट क्या है? इट विल कॉज कैंसर, इट विल कॉज द स्किन एलिमेंट, इट विल कॉज कैटरेक्ट ऑफ द आईज, इट विल कॉज क्या कहते हैं अदर डिजीज. काफ़ी सारे नुकसान करेंगे वो हमारे शरीर को, म्यूटेशन कॉज कर देंगे. इसके बाद प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी विल बी डिक्रीज, एंड देन वी हैव स्टडीड दैट क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो हमारे पेंट्स वगैरह ख़राब कर देते हैं. हमारे प्लास्टिक वगैरह जो धूप में पड़े हुए हैं, गमले लगाए हमने प्लास्टिक के, वो सब ख़राब हो जाते हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. कार्स विच वी कीप आवर कार्स इन द सन, दैट ऑल उसका प्लास्टिक जो है ख़राब से हो जाता है. डैशबोर्ड वगैरह आप कितना भी पॉलिश कराओ फिर अगली सा लुकिंग है ना वो. तो ऑल दिस थिंग्स जो है दैट इज द इफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर. सो हाउ मच, व्हाट इज द टाइम? टाइम भी होगा 10:23. हाँ, तो माई क्लास शुड बी 10:23 सर. हो गया टाइम भी आज का. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. थैंक यू.